Hello everyone. Now we are going to start the chapter solutions in endorphin classes. It is a chapter 2 of class 12. Now today in this class we will discuss about the concentration of the solutions. So first of all, when we start the solution chapter, you must know what do you mean by solution. Solution is basically the homogeneous mixture of two or more substances whose composition can be varied within the certain limits. Means there must be two or more than two components. Two or more than two components must be present. So these are called as the solutions. So in your syllabus, there is a binary solutions. Binary solutions are the solutions which are consist of two components. The one component is the solute and the another component is the solvent. Basically, in the solute we are using the term B and in the solvent we are using the term A. And solute is the component which is present in the less quantity, जिसका amount कम present होता है. And solvent is the component which is present in the high quantity, जो हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. तो जनरली सोल्यूट और सॉल्वेंट को हम इस तरीके से डिस्टिंग्विश कर लेते हैं. नाउ इन टाइप ऑफ द सॉल्यूशंस व्हिच आर बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल स्टेट्स, लाइक इफ वी आर टेकिंग द सॉलिड सॉल्यूशंस, तो थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर. एक होते हैं आपके सॉलिड सॉल्यूशंस, एक होंगे आपके लिक्विड सॉल्यूशंस और एक आपके होंगे गैसियस सॉल्यूशंस. So three types of the solutions are there. When we are talking about the solid solutions, so we can take the example of the solid in solid. तो एक होगा आपका solid in solid, in which you can take the example of alloys. कि alloys are the solutions of solid in solid. Another is liquid in solid. So liquid in solid, you can take the example of all the hydrated salts. So many hydrated salts you are come across till now. That is, you can take the example of copper sulfate, in which 5 water molecules are present, which is known as the crystallization, water of crystallization. Similarly, you can take the example of calcium sulfate, in which again the water molecule is there. So many examples of the hydrated salts are there. Now, third, you can take the gas in solid. In gas in solid, you can take the example of कि whenever you are having the charcoal cavity, and the harmful gases will be absorbed on it. तो जैसे अगर आपकी NO2 गैस है, CO2 गैस है, SO2 गैस है, ये सब harmful gases होती हैं. So carbon monoxide है, they will be absorbed on this charcoal cavity and that will become the example of gases in solid. Now we will continue with the type of the solutions, that is the liquid solutions. In liquid solutions we can take first of all the solid in liquid. हम सॉलिड इन लिक्विड को एग्जांपल लेते हैं. तो सॉलिड इन लिक्विड में क्या आएगा आपका कि यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं. इन सॉलिड इन लिक्विड you can take the example of salt in water, sugar in water, and again the so many examples are there in which you can dissolve the solid in liquid. And the another one is liquid in liquid. तो लिक्विड इन लिक्विड के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं. आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल को वाटर में डिसॉल्व कर दीजिए. टॉलवीन है, टॉलवीन को बेंजीन में डिसॉल्व कर दीजिए. So that will be the example of liquid in liquid. Then gas in liquid. Gas in liquid में you can take the example of soda water, in which CO2 gas will be dissolved in H2O. You can take the example of cold drinks. Again there is a CO2 dissolved in the liquid. So gas in liquid के आपके ये examples हो जाएंगे. Now the last type of the solution is the gaseous solutions. Gaseous solutions में आप example ले सकते हैं solid in gas में. Solid in gas में you can take the example of जैसे I2. I2 मतलब जो substances आपके sublime हो जाते हैं. अब sublime आपको मालूम है कि when the solid is directly reaches in the gaseous phase. So many examples are there again कि I2 को आपने air में कर दिया, camphor है, naphthalene है, when they will be evaporated, they will be sublime. So you can say कि these are the examples of solid in gases. Then liquid in gas. Liquid in gas में you can take the examples of smoke, aerosols, or these are the liquid in gases. Or the very simple example is humidity in the air. Humidity is the water vapors, and when they will be disposed of in the air, they will become the liquid in gases. Then gas in gas. तो gas in gas का तो आप कोई भी example ले लीजिए. The air is the simplest example of gas in gas. O2 in H2, N2 with H2. So these are the examples of gas in gas.
So depending upon the physical states, you can say the three types of the solutions are there: solid solutions, liquid solutions, and gaseous solutions. Now we will turn over to the concentration of solutions. So in concentration of the solutions, in the 11th standard, you have done this topic. So here we will repeat this chapter, repeat this topic, that is a concentration of the solution. So first of all, you should know ki what is the meaning of concentration of the solution. So it is the mass of the solute present in the one given quantity of the solvent. Means you can say कि the concentration of solution, अगर हम बात करते हैं और एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इट विल बी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द amount of the solute present in the given quantity of the solvent. So given quantity of the solution. So that is the concentration of the solution which can be expressed. So this is the expression of concentration of the solutions in various forms, or you can say the unit of concentration. The different type of unit of concentrations are there. So first of all, we can take the mass percentage, which is also known as the weight percentage, और इसी के अंदर अगर हम लिख लेते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज. तो इन तीनों का आपका सेम ही मेथड होता है निकालने का. जैसे अगर आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं, तो अगर आपको मैथ्स की मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है तो आप क्या करते हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड, जितने आपने मार्क्स लिए, डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, जितने आपके टोटल मार्क्स हैं, इनटू 100, मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100. सो दैट विल बिकम द मार्क्स परसेंटेज. तो ये आपके मार्क्स की परसेंटेज निकल आती है. सेम मेथड यू हैव टू अप्लाई हियर. अगर आपको वेट परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट के लिए, वेट परसेंटेज निकालना है सॉल्वेंट के लिए, तो यू हैव टू टेक द वेट ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल वेट. टोटल वेट किसका होगा, सोल्यूट का और सॉल्वेंट का, इनटू 100. तो वेट परसेंटेज ऑफ ए निकल आएगा. अगर आपको निकालना है वेट परसेंटेज ऑफ बी, तो आप क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपका WB एंड दिस विल रिमेन्स द सेम, दैट इज WA प्लस WB into 100. So that will become the weight percentage of the solute. Similarly, you can calculate the volume percentage. तो volume percentage भी आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं. Volume of A divided by volume of A plus volume of B into 100. That will be the weight volume percentage of A. Then you can calculate the volume percentage of B also. So these are the simplest method by which you can calculate the mass percentage, weight percentage or the volume percentage. Now the next जो इसके अंदर आपका concentration unit है, next concentration unit is the mole fraction. Mole fraction, mole fraction को denote करते हैं x से. So before that you should know कि how can you calculate the number of moles. ये भी आपने 11th में किया था, but यहाँ पर थोड़ा सा हम recall कर लेते हैं. Number of moles निकालने का फॉर्मूला होता है given mass upon में atomic mass और molecular mass. तो उसको हम बोलते हैं number of moles. जैसे अगर आपको निकालना है 11 ग्राम ऑफ सोडियम में कितना नंबर ऑफ मोल है, तो हम कर देंगे 11 by 23 बिकॉज द 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. तो 11 by 23 ये निकल आएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इन 11 ग्राम. ओके, देन अब आ जाइए मोल फ्रैक्शन के ऊपर. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट अगर हमने निकालना है तो फॉर्मूला विल बिकम Na अपॉन में Na प्लस Nb. Means it is the ratio. It is the ratio of number of moles of solvent to the total number of moles, Na plus Nb. Or Xb can be calculated Nb upon Na plus Nb. So in that manner, you can find out the number of mole fraction of solvent and mole fraction of solute. So Na, Nb you can easily calculate by using this formula. Given mass of अगर solvent का है तो Ma Wa upon Ma हो जाएगा, और अगर आपको NB निकालना है तो that will become WB upon MB. So in similar way, you have to substitute these values in this formula and calculate the mole fraction. Now, the another method for expressing the concentration of the solution is molarity. Molarity is denoted by the symbol capital M. And what is molarity? Molarity is the number of moles of the solute dissolved in the पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन. ये भी आपने 11th के अंदर पढ़ा था, बट यहाँ पर हम रिपीट पढ़ रहे हैं क्योंकि है भी हमारे सिलेबस में. तो हियर द मोलैरिटी इज व्हाट, अभी हमने क्या बोला, मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ये सोल्यूशन का है, ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, अगर सोल्यूट का और सॉल्वेंट का अलग अलग दिया हुआ है तो आपको ऐड करना पड़ेगा। और अगर लीटर्स में नहीं है, सपोज ये मिली लीटर्स में है, तो मोलैरिटी को आप इसको पहले चेंज कर लेंगे, सोल्यूशन का हो गया। अगर यहाँ ये मिली लीटर्स में दिया हुआ है तो फॉर्मूले को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो मिलीलीटर है वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट वे, इन दैट मैनर यू कैन कैलकुलेट द मोलैरिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। पर लीटर मतलब वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज टेकन इन लीटर्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस यू कैन फाइंड आउट द यूनिट आल्सो, जो कि आपका एग्जाम के अंदर आते ही है। So that will be moles per liter. Unit of the molarity is moles per liter. ये हो गया आपका. Then we have to determine the dependence on temperature. Dependence on temperature. Again, it is very important कि how does it depends upon the temperature. अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, अब देखिए यहीं पर देखो, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन एक्सपेंशन होगा तो इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोलैरिटी एंड द टेम्परेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी डिक्रीज करेगी, तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। Then we will take the another one, and this is the molality. Molality. Molality is denoted by the symbol M. तो molality के अंदर हम क्या करते हैं कि ये भी आपका normally आपका number of moles of the solute पर weight of the solvent taken in kg. यहाँ पर ये ध्यान रखना है, weight है वो solvent का weight है। अगर टोटल सोल्यूशन का वेट दिया हुआ है तो पहले आपको सोल्यूट का वेट माइनस करना पड़ेगा, उसके न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें डिस्कस करेंगे। और अगर ये ग्राम्स में है मोलैलिटी, अगर ग्राम्स में यहाँ पर आपका दिया हुआ है WA इन ग्राम्स, जो जनरली ग्राम्स में दिया होता है, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूले के अंदर, तो आपका निकल आएगा मोलैलिटी। तो यहाँ से ये मोलैलिटी आ गया। तो अब देखिए, अब इसकी यूनिट देखो, यूनिट क्या होगी, इट विल बी मोल्स पर केजी। यूनिट विल बी मोल्स पर केजी। तो ये हो गया। अब देखिए टेम्परेचर डिपेंडेंट, अगर हम टेम्परेचर डिपेंडेंसी देखते हैं तो मोलैलिटी के अंदर देयर इज नो वॉल्यूम टर्म। मोलैलिटी में वॉल्यूम टर्म तो है ही नहीं, एक आपका ये भी आपका मास है, ये भी आपका वेट है, तो ये तो चेंज होते ही नहीं है। दैट मीन्स यू कैन से मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका हो गया टेम्परेचर डिपेंडेंसी का। सो दैट इज द कंसंट्रेशन टर्म्स इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड। सो नाउ वी कैन डिस्कस अबाउट द मोलैलिटी। नॉर्मैलिटी एक्चुअली आपके सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन टर्म है तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो नॉर्मैलिटी, लेकिन ये आपके सीबीएसई के अंदर नहीं आएगा। नॉर्मैलिटी इज डिनोटेड बाय कैपिटल N. नॉर्मैलिटी इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सोल्यूट। क्या होगा, इट इज द ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट। अभी मैं समझाऊंगी आपको कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या है। टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स के अंदर होता है। अगेन अगर ये मिलीलीटर में है तो आप मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लीजिए। अब मोलैरिटी और नॉर्मैलिटी में आपको एक ही डिफरेंस दिखाई दिया है कि नॉर्मैलिटी के अंदर हम ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं और मोलैरिटी के अंदर हमने क्या लिया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट। सो नाउ सी हाउ कैन यू कैलकुलेट द ग्राम इक्विवेलेंट, कि अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपका होता है, इट इज द मास ऑफ सोल्यूट, जो मास आपको दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। Again the question arises कि what is the meaning of equivalent mass? So equivalent mass is the, जो आपका निकाला जाता है, it is the आपका होगा मोलर मास, जो भी आपका कंपाउंड है उसका मोलर मास डिवाइडेड बाय एसिडिटी और बेसिसिटी। एसिडिटी और बेसिसिटी। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे अगर आप NaOH लेते हैं, NaOH का जो मोलर मास है वो है 40 ग्राम। ओके, मोलर मास तो हो गया 40 ग्राम, लेकिन रिप्लेसिबल इसके हैं OH-1 है, 1 रिप्लेसिबल है, तो इसकी डिवाइडेड बाय 1 हम कर देंगे, तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास सेम हो गया।
एसिडिटी और बेसिसिटी में हमने देखना है कि कितने रिप्लेसेबल OH हैं या कितने रिप्लेसेबल H+ हैं, बस उससे डिवाइड कर दीजिए मोलर मास को। तो ऐसा नहीं है, इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल भी आ सकते हैं। जैसे अगर HCl आप लेते हैं, HCl में इक्विवेलेंट मास और मोलर मास इक्वल है, NaOH में इक्वल है। लेकिन अगर आप CaOH होल ट्वाइस लेते हैं या H2SO4 लेते हैं, इसमें 2 OH माइनस रिप्लेसेबल है, इसमें 2 H+ रिप्लेसेबल है, तो इनका जो मोलर मास होगा दैट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो उस मोलर मास को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मोलर मास ऑफ H2SO4 हम कैलकुलेट करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट मास निकलेगा। इस इक्विवेलेंट मास को हम यूज करेंगे यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में। मास ऑफ द सोल्यूट, जैसे अगर आपको दिया हुआ है मास, सपोज दिया हुआ है 25 ग्राम, तो 25 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। लेकिन ये आपका टॉपिक CBSE के अंदर नहीं है। तो इसके अंदर अगर आप टेम्परेचर डिपेंडेंट देखते हैं, तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी इसके अंदर आपकी आएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बिकॉज इट विल कंटेन द वॉल्यूम टर्म। इसके अंदर भी वॉल्यूम टर्म है, जैसे मोलैरिटी के अंदर था। सो अप टू हियर वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशंस एक्सप्रेस्ड इन द वेराइटी ऑफ आपके यूनिट्स में, जिसके अंदर आपने मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज ये आपने किया, mole fraction, molarity, molality and normality. Now we will discuss about the some numericals based on this concentration terms. So see the first numerical. What is that? Read the question carefully. 2.46 gram of NaOH. 2.46 ग्राम ऑफ NaOH, इसका मतलब ये B है, सोल्यूट है। ये आपका MB हो गया, MB, दिस इज WB, आर डिजॉल्व्ड इन वाटर। वाटर क्या हुआ? A हुआ, मतलब सॉल्वेंट। एंड द सोल्यूशन इज मेड टू 100 cm3। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको दिया हुआ है, और cm3 मतलब मिलीलीटर्स में दिया हुआ है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन। सो वी हैव टू क्या करेंगे, आप इसके अंदर फॉर्मूला अप्लाई करिए। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? मोलैरिटी का। तो मोलैरिटी क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। लेकिन यहाँ पर अगर मिलीलीटर्स में है तो हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बहुत सिंपल है, पहले NB निकाल लीजिए। NB क्या होता है? WB अपॉन में MB। तो व्हाट इज WB हियर? WB इज 2.46 डिवाइडेड बाय व्हाट इज MB? इट इज 40। सो 2.46 डिवाइडेड बाय 40 ग्राम, इट इज कम्स आउट टू बी, अगर आप NB लेते हैं तो इट इज कम्स आउट टू बी 0.06। आप निकाल के इसको देख लेंगे, इतने आपका आ गया नंबर ऑफ मोल। इसको यहाँ लगा दीजिए। सो 0.06 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इज 100 मल्टीप्लाई बाय 1000। सो व्हाट द वैल्यू कम्स आउट टू बी? इट इज 0.615। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके MCQ में आ सकते हैं और आएंगे ही। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी का विद यूनिट, मोल्स पर लीटर। तो पॉइंट का, डेसिमल का, इन सब का कोई आपके में नहीं होना चाहिए कि आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। सो इट इज कैपिटल M, दैट इज मोलैरिटी। Now turn to the second example. आप देखिए, if 11 gram of oxalic acid are dissolved in 500 ml of solution where the density, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसिंग है, यहाँ पर ये ऐड कर लेना। डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। What is the mass percentage of oxalic acid in the solution? अब मास परसेंटेज आपको निकालना है। मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड कैसे निकलेगा? चलिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। अब ये आपका B है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? WB डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये डेंसिटी दी हुई है 1.1, डेंसिटी सोल्यूशन की होती है, ठीक है। मास परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए? मास परसेंटेज हमें निकालना है ऑक्सैलिक एसिड का, तो इसका मतलब हमें B का निकालना है। सो दैट विल बी WB बाय M। मास परसेंटेज में WB बाय WA प्लस WB इंटू 100, ये तो निकालना है हमें। WB डिवाइडेड बाय WA प्लस WB इंटू 100। WB हमारे पास है 11 ग्राम, लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है, आपके पास WA नहीं है, वॉल्यूम नहीं है आपके पास वेट नहीं है, वॉल्यूम है, लेकिन डेंसिटी भी है। तो डेंसिटी और इसके अंदर आपका क्या फॉर्मूला होता है? अगर हम डेंसिटी लेते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बहुत सिंपल है, जहां कहीं भी डेंसिटी है। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके अंदर हम क्या लगाएं। एक्चुअली में डेंसिटी हमेशा सोल्यूशन, अगर आप मास निकाल रहे हैं तो वो भी सोल्यूशन का निकलेगा, अगर आप जो भी आप निकालते हैं वो हमेशा
सोल्यूशन का निकलता है। तो यहां से आपका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है आपका 500 ml, ठीक है। डेंसिटी है 1.1। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मास ऑफ सोल्यूशन, तो आपका मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा 550 ग्राम। 550 ग्राम ये आपका आ गया सोल्यूशन का मास। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास ये मास ऑफ सोल्यूशन ही तो है जो नीचे हमने लेना है, ये जो आपको WA प्लस WB लेना है, तो ये आ गया आपका WA प्लस WB 550 ग्राम। सो मास परसेंटेज इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाय WB इंटू 100। तो व्हाट इज कम्स आउट टू बी 11/550 इंटू 100। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे इट इज कम्स आउट टू बी 2%। कैलकुलेट करके, कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ टर्न टू द न्यूमेरिकल 3। अगले न्यूमेरिकल की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अब बी को मेंशन करो पहले कि बी क्या है, आपका ग्लूकोज आपका बी है, तो ये आपका WB हो गया। एक एक लाइन को पढ़ के वहीं पर उसको मेंशन करना है। ये आपका हो गया MB, ठीक है। आर डिजॉल्व्ड इन 30 ग्राम ऑफ वाटर, ये आपका हो गया WA। और अगर MA हम लिखें तो होगा 18। क्यों होगा 18? वाटर है, H2O। तो 2 + 16 कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। चलो इतना तो हमारे पास आ गया। कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी आपको निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताओ? मोलैलिटी कैसे निकाल देंगे? NB अपॉन WA इन, यहाँ पे ग्राम्स में दिया हुआ है तो हम मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो दैट विल बी द मोलैलिटी। सिंपल है। आप NB लगाइए। NB का क्या फॉर्मूला होता है? WB/MB। ये लगा दीजिए, सब कुछ आपको दिया हुआ है। जब आप वैल्यूज सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आपका मोलैलिटी का आएगा दैट विल बी 0.522 M। ये आपका आंसर आएगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा निकालने के बाद। फिर आप निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर दोनों का निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता है मोल फ्रैक्शन के लिए? X ऑफ ग्लूकोज अगर निकालना है तो N ऑफ ग्लूकोज डिवाइडेड बाय N ऑफ ग्लूकोज प्लस N ऑफ वाटर। तो N कैसे निकलेगा? वही WB/MB। वाटर का भी ऐसे ही निकलेगा, WA/MA। निकाल के वैल्यू निकाल दीजिए। तो आपका जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा ग्लूकोज का, ये निकलेगा 0.009। तो ये आप चेक कर लेना ग्लूकोज का। ऐसे ही जब आप वाटर में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो आपका निकलेगा 0.991, ये निकलेगा, ठीक है। तो ये आपका निकल आया ये वाला मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। जब आप क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, यहां पर देखो ये वाला मोलैलिटी। नाउ सी, calculate the molality of the solution containing 20.7 ग्राम of potassium carbonate। potassium carbonate K2CO3 होता है, dissolved in 500 ml of solution assuming density of the solution is this 1 ग्राम पर मिलीलीटर। अब डेंसिटी का मैंने आपको बताया हुआ है कि डेंसिटी के अंदर आप कैसे लगा सकते हैं, वही डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम करके। इसके अंदर वॉल्यूम आपको दिया हुआ है और डेंसिटी यूज करके आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। जब मोलर मास आप निकालेंगे K2CO3 का, तो मोलर मास इसका निकलेगा आपका 138 ग्राम पर मोल। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो ये आपका पोटेशियम का K2CO3 का आ जाएगा मोलर मास। अब क्या करेंगे? मास ऑफ द मास निकालेंगे। अब जो मास आपका निकलेगा, मास ऑफ द सोल्यूशन कैसे निकलेगा? 1 × 500 ml, तो 500 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी है 1, मास आपको चाहिए, वॉल्यूम आपका 500 है, तो दैट इज कम्स आउट टू बी 500 ग्राम। लेकिन ये जो 500 ग्राम है ये सोल्यूशन का मास है और आपको निकालनी क्या है? यहाँ पर देखो मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के लिए तो आपको WA चाहिए। तो ये जो आपका निकला है ये निकला है WA प्लस WB, दैट इज 500 ग्राम। तो आप इसमें से माइनस कर देंगे 5, अगर आपको WA निकालना है और WB आपको 20.7 है, तो 500 माइनस 20.7 ये आप माइनस कर देंगे। तो यहां से आपका आ जाएगा WA। उसके बाद तो न्यूमेरिकल आपका सिंपल है। और जब आप इसका आंसर निकालेंगे तो आंसर इसका आपका निकलेगा 0.313 M।
ये आंसर आपका निकलेगा। तो इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि आपका आंसर यही आ रहा है या नहीं। नेक्स्ट है आपका इस शुगर सिरप ऑफ वेट। इसका मतलब शुगर सिरप मतलब C12H22O11। तो इसका जब मोलर मास आप निकालेंगे दैट इज कम्स आउट टू बी 342 ग्राम। ये मोलर मास निकलेगा। निकाल के कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ये आपका WB है, ठीक है। और ये आपका ये शुगर सिरप वेट, ये सोल्यूशन है। ये सोल्यूशन का वेट आपको दिया हुआ है, पूरे सोल्यूशन का। और ये आपको दिया हुआ है WB। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब है आपको निकालनी है मोलैलिटी। क्या निकालनी है आपको? आपको निकालनी है मोलैलिटी यहाँ पर। और मोल फ्रैक्शन तो वही है कि आपको x निकालना है। अब फॉर्मूले के अंदर लगाइए, मोलैलिटी निकालिए और इसका आंसर फाइंड आउट करिए कि क्या आंसर इसका निकलेगा। तो शुगर सिरप वाले क्वेश्चन के अंदर आपको शुगर सिरप ऑफ वेट 2141, तो इसके अंदर जो आपके आंसर निकलेगा, तो मोलैलिटी जो आपकी निकलेगी वो निकलेगी 0.56 m। और जो मोल फ्रैक्शन आपका निकलेगा शुगर का जो मोल फ्रैक्शन निकलेगा वो निकलेगा 0.1। और आपका शुगर का ही आपको निकालना है 0.1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे शुगर के। और मोल फ्रैक्शन आपका निकलेगा 0.0099। ये आपका निकलेगा मोल फ्रैक्शन। ये नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे और ये निकलेगा मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और वाटर है, वाटर का जो मोलर मास आपका होता है वो होता है 18। बस इस तरीके से you can calculate the molality and mole fraction. So in this lecture we have discussed about the concentration units and the numerical based on it. So you have to do the questions. Whenever you will find the problem, you can write in the comment box. So you have to complete your work first. In the next lecture we will discuss about the Henry's constant, Henry's law and the application.